to my channel Science Classes, and if you are new to my channel then please do like, share and subscribe to my channel. Now today we are going to learn about excretion in humans. This is your chapter from your Biology ICSE class 7 book. So in this chapter we are going to learn about the definition of excretion, the excretory organs, the structures of the excretory organ. Alright, the role of kidneys in filtration of blood and all these structures that are involved in excretion. So, अभी excretion क्या होता है? What is excretion? So, what is excretion? Excretion is the removal of unwanted waste from our body. Unwanted waste मतलब जिस चीज़ की हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं है वो चीज़ हमारी बॉडी बाहर निकालना चाहती है ना, with the help of the excretory organ, and the process is known as excretion. So what is the definition? The definition is the removal of unwanted waste from our body, or the unwanted that like toxins from our body is known as excretion. Now we all know that there are a lot of metabolic activities takes place in our body. All right, due to which our body produces a lot of useful substances जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, which is necessary for our body. और उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं which our body don't need, या फिर हमारे बॉडी में एक्सेस में प्रेजेंट होता है. Alright, तो वो क्या करता है, हमारे what our body tries to do that, our body want to remove that from our system, जिसको हम लोग excretion बोलेंगे. अब the organs which helps in removal of these unwanted toxic substances from our body is known as excretory organ. Excretion takes place with the help of excretory organs. बहुत सारे excretory organs मिलके क्या बनाएंगे, excretory system बनाएंगे. Now the process of removal of unwanted and harmful metabolic waste substance is called excretion. और अगर ये जो प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से रिमूव नहीं हुआ तो क्या होगा, इट कैन बी पॉइजनस एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर बॉडी. इसलिए इट इज़ नेसेसरी कि जो भी वेस्ट हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है वो हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो जाए. नाउ व्हाट आर द सब्सटेंस विच आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम और फ्रॉम आवर बॉडी? यूरिया एंड यूरिक एसिड. यूरिया और यूरिक एसिड क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है. नाउ नंबर 2 इज बाइल पिगमेंट्स, नंबर 3 इज वाटर एंड नंबर 4 इज एक्स्ट्रा सॉल्ट्स एंड एक्स्ट्रा वाइटामिन्स. नाउ अब तुम लोग सोचोगे कि ये वाइटामिन्स क्यों एक्सक्रीट होगा. ऑफ कोर्स वाइटामिन्स इज नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. और हम लोग जो भी फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, जो भी फूड खाते हैं उससे हम लोग को क्या मिलता है, बहुत सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं, विटामिन्स मिलता है. बट कुछ वाइटामिन्स जो एक्सेस क्वांटिटी में हो जाता है प्रोड्यूस, तो आवर बॉडी नीड्स अ स्पेसिफिक अमाउंट. हमारे बॉडी को जितना भी खाना ज़रूरत है, चाहे वो विटामिन सी क्यों ना हो, अगर वो बॉडी में ज़्यादा एक्सेस में प्रेजेंट है तो बॉडी उसको भी अपने सिस्टम से एलिमिनेट कर देता है. ऑलराइट. Now, number 1, urea and uric acid. Nitrogenous waste, these are known as nitrogenous waste. Urea and uric acid. This is important. ये one word answers में भी आता है. Alright. These are produced as a result of the breakdown of excessive amino acid in the liver. ये कहाँ produce होगा? Liver में. If allowed to accumulate in the body, these are harmful. अगर ये बॉडी में रहता है, अगर हम लोग की बॉडी से रिमूव नहीं होगा यूरिया एंड यूरिक एसिड, तो इट विल कॉज हार्म टू आवर बॉडी. नाउ नंबर 2 इज बाइल पिगमेंट्स. दीज आर फॉर्म्ड इन द लीवर. वेयर दिस बाइल पिगमेंट्स आर फॉर्म्ड? दे आर फॉर्म्ड इन द लीवर. दे गिव अ येलोइश टिंच टू द यूरिन. अब हमारा जो यूरिन होता है वो स्लाइटली येलो होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द बाइल पिगमेंट्स. Excess of bile pigments become harmful, hence they are removed from the body. Now these bile pigments are also removed, excreted from our body. How they are removed?
अब वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारा बॉडी एक्सक्रीट करेगा, एक्सक्रीशन होगा, बट ये कैसे होता है? इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. यूरिन वी पास यूरिन ना, तो उससे हमारा जो भी बॉडी का टॉक्सिन्स है वो निकल जाता है. Now number third is water. Water is taken in with food and beverages in large quantity. पानी तो हम लोग पीते हैं. पानी, you all must be thinking water is not a waste, but yes, we drink water. Alright, हम लोग चाय पीते, कॉफी पीते, we drink milk, juice, etc. ये सबका जो मेन प्रोपोर्शन क्या होता है? वाटर होता है. तो हमारे बॉडी में अगर एक्सेस वाटर है तो वो भी हमारा बॉडी जो है एक्सक्रीट करेगा. Alright. So the excess water will be removed, and water is also used for washing out all the nitrogenous waste. है ना, वाटर जो है हेल्प करता है हमारे बॉडी को क्लीन करने में, हमारे बॉडी का जो सिस्टम्स है उसको क्लीन करने में हेल्प करता है. साथ में जो एक्सेस वाटर है वो रिमूव भी हो जाता है. द बॉडी रिटेन्स सम वाटर रिक्वायर्ड एज अ नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट व्हाइल द एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इन डिफरेंट वेज. अब डिफरेंट वेज का क्या मतलब है? In the form of urine and sweat. हम लोग को स्वेटिंग होता है ना, ज़्यादा गर्मी लगती है, पसीना आता है, तो क्या होता है? स्वेट इज ऑल्सो, उसमें भी तो पानी होता है ना, कुछ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है, पानी होता है. तो डिफरेंट वेज में जो है हमारे बॉडी से वाटर लॉस होगा. नंबर 4 इज एक्स्ट्रा सॉल्ट्स सच इज द कॉमन सॉल्ट NaCl, सोडियम एंड क्लोराइड आयन. एक्स्ट्रा सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट क्या है? सोडियम क्लोराइड. Ions or any other ions are needed in the body only in certain proportion. Any extra quantity must be removed. Extra salts are expelled along with the urine. अब हमारे बॉडी को तो सॉल्ट की भी ज़रूरत होती है, पानी की भी ज़रूरत होती है, लेकिन अगर हमारे बॉडी में एक्सेस सॉल्ट है, जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है हमारा बॉडी उतना ही यूज़ करता है और उतना ही रखता है. और कुछ भी थोड़ा भी ज़्यादा है तो बॉडी क्या करता है? उसको एक्सक्रीट कर देगा. Salt is also a form of waste product. Now number 5 is extra vitamins. The vitamins absorbed from the food may be in excess. The fat soluble ones are stored in the body. Now vitamins तो हमारे फूड से हमारा बॉडी अब्जॉर्ब करता है and they are also very essential. लेकिन अगर ज़्यादा विटामिन अब्जॉर्ब हो गया है तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो तो हमारे बॉडी में स्टोर रहता है in the form of carbs. बट जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, विच आर द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स? दीज आर विटामिन B and vitamin C. They are passed out in urine. Similarly, certain medicines including antibiotics if taken in extra quantity are passed out along with urine. अब ये मेडिसिन जो एंटीबायोटिक्स, you all must have heard antibiotics हम लोग खाते हैं in like any bacterial infection or something. तो अगर ये एक्सेस क्वांटिटी में है या फिर जितनी ज़रूरत है बॉडी को उतना ही अब्जॉर्ब करता है, बाकी जो एक्सेस रहता है वो हमारे यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है. मे बी आफ्टर सर्टेन मेडिसिन, आफ्टर ईटिंग सम मेडिसिन, यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि यूरिन जो है उसका कलर जो स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा येलोइश होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दैट मेडिकेशन इन योर यूरिन. नाउ दिस इज द definition. Excretion is the removal of all toxic and unwanted metabolic waste products from the body. Now we are going to discuss about the excretory system. अब excretory system क्या होता है? अब excretion body में होगा तो एक system होगा ना उसके लिए, उसको हम बोलते हैं excretory system. excretory system मतलब बहुत सारे organs मिलके excretory system बनाएंगे. So let's see what are the organs that join together to form the excretory system. The renal excretory system or simply excretory system. तो excretory system को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? renal excretory system. और ह्यूमन बीइंग में क्या क्या होता है excretory organs? pair of kidneys. pair of kidneys मतलब 2 kidneys होगा, 2 ureters, 2 ureters, a urinary bladder and a urethra. You can see in the image. यहाँ पे ये किडनीज है, ये जो लॉन्ग नैरो पाइप जैसा दिख रहा है ना, ये यूरेटर है, एंड दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर इज अ यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ पे है यूरेथ्रा. नाउ नंबर 1 इज किडनीज. दीज आर किडनीज. ये बीन शेप दो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये है किडनी. तो अभी किडनी कहाँ प्रेजेंट होता है?
एट द बैक ऑफ द एब्डोमेन, हमारे एब्डोमिनल एरिया में प्रेजेंट होता है. ओके, एंड व्हाट इज द शेप? शेप कैसा दिख रहा है ये? दीज आर बीन शेप्ड. एंड व्हाट इज द कलर? दे आर रेडिश ब्राउन इन कलर. They are 2 in numbers and they are kidney shaped, like bean shaped, sorry. And these are known as kidneys. The kidney is located slightly lower than the left one. This is a right kidney. Right kidney जो होता है वो थोड़ा नीचे होता है as compared to the left one. Left one थोड़ा ऊपर होगा as compared to the right one. So these are the kidneys. अब kidneys से क्या निकलेगा? ये जो 2 पाइप दिख रहा है ना, नैरो ट्यूब, ये है यूरेटर. यूरेटर जाके ज्वाइन कर रहा है, किसको ज्वाइन कर रहा है? यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है. एंड दिस इज यूरेथ्रा. यूरेथ्रा और दी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जहाँ से यूरिन एक्सक्रीट होगा हमारे बॉडी के बाहर. नाउ नंबर 2 है यूरेटर्स. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज अ नैरो ट्यूब कॉल्ड द यूरेटर दैट रन्स फ्रॉम द इनर साइड ऑफ बोथ द किडनी. दोनों की किडनी के अंदर के साइड से आया है ना, और कहाँ जाके रुकेगा ये? यूरिनरी ब्लैडर. नाउ यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्कुलर बैग. दिस इज अ मस्कुलर बैग. और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लोअर एब्डोमेन में होता है. नाउ यूरेथ्रा लीडिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इज अ सिंगल मीडियम ट्यूबुल कॉल्ड द यूरेथ्रा. इट इज द ओपनिंग टू आउटसाइड. यूरेथ्रा इज ओपनिंग टू द आउटसाइड. फीमेल में दिस विल बी शॉर्टर एज कम्पेयर टू मेल. मेल में जो यूरेथ्रा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स. फीमेल्स में यूरेथ्रा स्मॉल होता है. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. किडनी है ये कैसा दिख रहा है? इट इज अ बीन शेप्ड. नाउ इंटरनली ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ एन आउटर डार्क रीजन. नाउ ये द आउटर रीजन है, थोड़ा ज्यादा डार्क होगा एज कम्पेयर टू इनर वन. और जो आउटर रीजन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? और ये जो इनर रीजन है, ये जो दिख रहा है ना पिरामिड शेप का ट्राइंगल जैसा, ये है मेड्यूला. मेड्यूला जो होता है वो थोड़ा लाइटर होता है एज कम्पेयर टू द कॉर्टेक्स. अब ये मेड्यूला क्या करेगा? दिस विल ड्रेन द यूरिन इनटू अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द रेनल पेल्विस. ये दिख रहा है ना फनल शेप स्ट्रक्चर, यहाँ पे यूरिन ड्रेन करेगा, मतलब यहाँ यूरिन पास करेगा मेड्यूला. और फिर ये किधर जाएगा? यूरेटर इधर से निकल रहा है, यूरेटर्स. तो यूरिन जो है वो यहाँ पे आया फनल शेप स्ट्रक्चर रेनल पेल्विस में, और फिर ये यूरेटर से जाएगा नीचे, और यूरेटर से नीचे जाने के बाद ये आके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा. एंड व्हेन वी फील द अर्ज of urination, जब हम लोग को लाइक सुसु आता है, then we go and pass urine from this organ urethra. Now nephrons. Now inside the kidney there are millions of microscopic tubular structure called renal tubules और नेफ्रॉन. अब नेफ्रॉन जो होता है वो बहुत सारे टाइनी छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है. बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है वो मिलके किडनी बनाएगा. बहुत सारे छोटा. जैसे हमारे बॉडी में सेल होता है ना, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल जो होता है, you all must have studied in standard 6 cell. It is the structural and functional unit of life. जो कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सबसे छोटा बॉडी का पार्ट, उसको हम लोग सेल बोलते हैं. उसी तरह से जो किडनी का जो सबसे छोटा पार्ट होगा, किडनी जो है बहुत छोटे स्टेज से होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. जस्ट लाइक सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उसी तरह से नेफ्रॉन होता है, दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. नाउ किडनी जो है हमारा वो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से बना हुआ होता है, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. नाउ ईच नेफ्रॉन स्टार्ट एज अ कप लाइक बाउमन्स कैप्सूल. ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम लोग बाउमन्स कैप्सूल बोलेंगे. which continues behind as a narrow tubule. The tubule is convoluted and twisted and opens into a collecting duct. देखो ये ऐसे आ रहा है ना मुड़ के ट्विस्टेड स्ट्रक्चर में, और कहाँ आकर ओपन होगा? कलेक्टिंग डक्ट में. एंड विच विल ओपन इनटू द रेनल पेल्विस
रेनल पेल्विस, फिर जाकर यहाँ आएगा, दिस इज द रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस कहाँ ओपन होता है? यूरेटर में जाकर ओपन होता है, और यूरेटर फिर जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, एंड देन फाइनली यूरेथ्रा से यूरिन जो है दैट विल पास आउट। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर दिख रहा है, सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ट्विस्टेड स्ट्रक्चर, बहुत सारा टर्न्स है, ट्विस्ट है ना, ओके, which joins the collecting duct. So this is the basic structure of a nephron. Now, so we will discuss the role of kidneys and accessory excretory organs, about the osmoregulation in the next class. So today we will end the class till here. See you soon with my another video. Till then, bye bye, take care, and do like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching.